مولانا طاہر اشرفی صاحب ہمارے پرانے دوست ہیں، بلال یاسین صاحب MNA ہیں نون لیگ کے۔ مولانا یہ بتائیں کہ کالعدم تنظیمیں نام بدل کے پھر وہی دھندا شروع کر دیتی ہیں، اس کا کیا علاج ہے؟ اس کا کوئی مستقل حل ہے؟ بالکل اس کا مستقل حل ہے جی کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیں جو اس ملک میں اس ملک کو تسلیم کر کے، اس ملک کے قانون کو تسلیم کر کے یہاں رہنا چاہتے ہیں، اور اگر ماضی میں ان کی جماعت نے یا ان کے لوگوں نے کوئی ایسی کوتاہی کی ہے کہ جس کی وجہ سے ان پر پابندی لگی ہے اور وہ آئندہ وہ کوتاہی نہ کرنے کا آپ کے ساتھ عزم کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، آپ کے ساتھ وہ سچائی کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تو وہ آپ کے ملک کے شہری ہیں۔ کتنے لوگوں کو آپ جیلوں میں بند کر لیں گے، کتنے لوگوں کو آپ ملک بدر کریں گے؟ اگر وہ لوگ اس ملک کے شہری بن کے رہنا چاہتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ کوئی مین اسٹریم میں آ کے نارمل انسانوں کی طرح زندگی اگر وہ گزارنا چاہیں، بالکل ان میں اتنا پوٹینشیل یا گنجائش ہے کہ وہ نارمل انسان بن سکیں؟ بالکل ہے حسن صاحب، میں گزارش کروں گا، یہ پابندیاں میرے دور میں لگی تھی، میں اس وقت ایڈوائزر تھا۔ ہم نے یہ کافر اور تبرہ، یہ بنیاد تھی پابندیوں کی۔ الحمدللہ میں آج آپ کو بڑے فخر سے یہ بتا رہا ہوں کہ جو آخری محرم گزرا جس میں میں ایڈوائزر تھا، اس آخری محرم کے اندر کسی شیعہ نے سنی پہ، سنی نے شیعہ پہ پرچہ نہیں کروایا، اور اس کے بعد یہ فضا دن بہ دن کم ہوئی، اور ایک ٹائم وہ آیا کہ جب کسی جلسے، کسی مجلس، کسی جگہ پر یہ امتیاز عالم صاحب آئیے، اب جانے محفل تشریف لائیں۔ اچھا پلیز آپ بات مکمل کریں۔ کسی جگہ پر حسن صاحب یہ نعرے بازی اور تبرہ دونوں بند ہوئے، کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ میرٹ ہوگا، انصاف پہ چلیں گے، جو تبرہ کرے گا اس کو بھی قانون کے مطابق سزا ملے گی، جو کسی کو کافر کہے گا اس کو بھی قانون کے مطابق سزا ملے گی۔ پھر ہوتا یہ ہے، پرابلم یہ ہے کہ جب حکمران خود فریق بن جاتے ہیں، جب حکمران خود انصاف کی بجائے پارٹی بن جاتے ہیں۔ کیسے، ذرا اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں۔ میں اس میں گزارش کرتا ہوں کہ یہ آج کل ہی آپ دیکھیں کہ صوبائی حکومت کا وزیر قانون ایک جماعت کے ساتھ کھڑا ہے، اور وزیر داخلہ جو ہے وہ دوسری جماعت کے ساتھ کھڑا ہے۔ وہ یہ وزیر داخلہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے کہ یہ بین جماعت ہے، وہ کہتا جی نہیں، یہ میرے ساتھ کھڑے ہیں، کھڑے رہیں گے۔ وزیر قانون کہتا جی نہیں، ان کا ووٹ ہے، میں نے تو ان کے ساتھ جانا ہے۔ مجھے آپ بتائیں آپ کی پالیسی کہاں ہے؟ آپ کے جو ہیں میاں نواز شریف صاحب، وہ فرما رہے ہیں کہ طالبان سے مذاکرات کریں آپ، ابھی لاسٹ ان کی پریس کانفرنس ہے۔ ان کی جماعت کا ایک رکن قومی اسمبلی جو ہے صاحبزادہ فضل کریم، وہ ایسی تیسی کر رہا ہے طالبان کی۔ آپ مجھے بتائیں کہ یہ ان کی اپنی پالیسی حکمرانوں کی جو ہے وہ ایک نہیں ہے، یا تو یہ طے کریں کہ جی ہم نے کسی ایک سمت میں جانا ہے، جب یہ خود ایک پلڑے میں کھڑے ہوتے ہیں اور انصاف کے تقاضے۔ میں ایک سیکنڈ میں امتیاز صاحب سے ایک بات پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ یہ جو بات کی ہے انہوں نے، اس کا مطلب ہے یہ جو تھیسس آج کل چل رہا ہے بہت زیادہ کہ پارٹی پہ میاں برادران کی گرفت جو ہے وہ ڈھیلی ہو رہی ہے۔ دیکھیے میاں صاحب بڑے سٹیٹسمین ہیں، آپ کو بات پسند نہیں آئے گی۔ میاں صاحب 90 کی دہائی والی سیاست نہیں کر رہے ہیں۔ میاں صاحب جمہوری حکومت کا تختہ الٹانے کے لیے کچھ لوگ جو سازش کر رہے ہیں اس کا حصہ بننے سے انہوں نے انکار کر دیا۔ اس کا حصہ بن چکے ہیں؟ بننے سے انکار کر دیا۔ اچھا ٹھیک۔ جب انکار کر دیا تو میاں صاحب کی ایسی تیسی کروا دی گئی۔ میاں صاحب کو کوئی قصور نہیں ہے کہ انہوں نے انکار کر دیا اس بہودہ کھیل کا جو اس ملک میں ہر 5ویں 10ویں سال کھیلا گیا آمرانہ قوتوں کو لانے کے لیے، اس لیے میاں صاحب پہ حملہ ہو گیا۔ دوسرا حملہ یہ ہوا ہے کہ اس پارلیمنٹ نے انہی لوگوں نے، آپ کانسپریسی کی بات، ایک منٹ، وہ جو قرارداد میڈیا کے خلاف آئی ہے، یہ بیٹھے بٹھائے یہ پنگا لینے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ انہوں نے کروا دیا، کو بچے ہیں آپ دیکھیے بات انگوڑے میں بات سنیں، یہ پنگا تو ہوا غلط، جیسے آپ نے فرمایا آپ پنگا ہے، اور پنگے کا خمیازہ انہوں نے بھگت لیا۔ میاں صاحب نے معذرت کر لی، ان کی پارٹی نے معذرت کر لی، اور میں اس چیز کو اپریشیٹ کرتا ہوں، کیونکہ ہم نے دیکھے ملٹری رولرز، جب جیو پہ حملہ ہوا تو جنرل مشرف نے معافی نہیں مانگی تھی، قرارداد واپس نہیں کروائی۔ مولانا ایک بات بتائیں، یہ ہمارے وہ لوگ جو آج سے 15-20 سال پہلے سائیکلوں پہ تھے، وہ 5-5 مرلے کی جیپوں پہ کیسے آئے؟ صورتحال تو یہ ہے کہ ابھی ہمارے وزیر اعلیٰ پنجاب نے صرف ایک کنال کا پلاٹ، ایک کنال 8 مرلے کا، یہ میرے پاس ڈاکومنٹ ہے،
अरशद मार्केट फैसलाबाद में दिया है। इंतजामिया ने लिखा कि जनाब इसके एक मरले का किराया सरकारी रेट, आपको पता है सरकारी रेट और बाहर का रेट का कितना फर्क होता है, वो 11,000 रुपया एक मरला है। ये इंतजामिया ने लिखा, डीसीओ ने लिखा, कमिश्नर ने लिखा। वजीर आला साहब ने कहा नहीं जी 0 पे दे दे इनको। अब मुझे बताएं वो किस खुशी में, वो यही सवाल है। मैं पूछता हूं, मैंने कल वफाकुल मदारस वालों से पूछा कि आपके 14,000 मदरसे हैं, क्या किसी को मियां साहब ने 40 रुपए भी दिए हैं इनाम के तौर पे? ये वो सियासी रिश्वतें हैं हसन निसार साहब जो IGI और अफगान जिहाद के बाद से शुरू हुई और चल रही है। आप इसे मजहबी रिश्वत भी कह लें आप। नून लीग के हैं मैंने बिलाल यासीन साहब, इनसे पूछते हैं, ये तो यही इसकी वजाहत दे सकते हैं। मैं आपको बताऊं कि ये कोई अनप्रेसिडेंटेड नहीं है कि ये किसी को प्लॉट दिया गया, किसी फर्द के नाम पे प्लॉट नहीं दिया गया। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने अगर किसी को प्लॉट दिया है तो इस तरह के प्रेसिडेंट मौजूद हैं कि दीनी खदमात के यानी ये रिवायात आपने खत्म नहीं करनी, वो खत्म होनी इसका चाहिए। जवाब ये है होनी कि चाहिए। ये काम इसलिए हुआ चूंकि ये होता रहा है। हम उनकी सोच ऐसी सोच रखने वाले लोग हैं कि ये खत्म होनी चाहिए और अल्हम्दुलिल्लाह ये क्रेडिट जाता है, चाहे हम इस चीज को माने ना माने, मगर ये जो गवर्नमेंट है इसमें ठीक है, मैं मानता हूं कि इसकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन नहीं है, मगर कम से कम इस चीज को एतराफ करना चाहिए कि बेहतर करने की कोशिश हो रही है। अवामी सा सवाल है, ये मौलाना फजल करीम साहब भी नून लीग के हैं और राणा सनाउल्लाह साहब भी नून लीग। जी बिल्कुल, ये आपस में हसन साहब लड़ी जा रहे, चक्कर क्या है? ये पार्टी पे क़यादत की गिरफ्त, वो जो मैं इम्तियाज आलम साहब से बात कर रहा था कि वो आपका थीसिस ये है कि उनकी गिरफ्त लूज नहीं हो रही, उनको किसी चीज की सजा दी जा रही है। मैं तो ऐसा हूं कि सियासी पार्टियों में जमहूरी कल्चर आए और सियासी जो लीडर है वो आका ना बने और वो भी देवता ना बने। हाँ, वो भी अपनी पार्टी से मावरा और रसूलों से मावरा कुछ चीज बने। जैसे ये पंजाब असेंबली में अगर कुछ लोगों ने मुजाहमत की कि करारदाद वापस ना हो और मस्ती को ना निकाला जाए, तो ये अच्छी बात है। मैं भी इसके हक हम में चाहते हैं कि ना निकाला जाए, एक इवेंट है, हुआ है, और वो खत्म करें, ने रिव्यू किया, अच्छी बात है, रिव्यू किया। लेकिन ये जो हम चाहते हैं ना कि ये जो बात हो रही है, मैं से बात करना चाहता हूं। पाकिस्तान का मुस्तकबिल ये है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान बनने जा रहा है, या गली गली लोगों का खून होगा, गली गली में मस्जिदों से एक दूसरे बम्बारमेंट होगी, और ये सिर्फ एक फिरके की हद तक नहीं है, फिरकों और फिरकों और फिरकों और मलेशियात और मलेशियात और मलेशियात के दरमियान। एक जमाना था बचपन में हम अताउल्लाह शाह बुखारी की तकरीर सुनने जाते थे, सायरात को 5 बजे तक तकरीर चलती थी। हमारी माए हम पलंग घर से 8-8 घंटे तकरीर सुनते थे। हमारे शहर के बड़े ग्राउंड में एक तरफ बरेलवी है, एक देवबंदी है, मनाजरा हो रहा है। पार्टी से पहले मनाजरे होते थे, तो वो सब एक हदूद में था। अब बात खत्म हो गई, अब तो दरस निजामी खत्म हो गया। मैं दरस निजामी का हामी नहीं हूं, लेकिन दरस निजामी में जो बुनियादी चीजें पढ़ाई जाती थी वो अब रसायल आ गए हैं नफरत के। शिया काफर है, सुन्नी काफर है, देवबंदी काफर है, बरेलवी काफर है, तकफीरी काफर है, बाकी सारे अहले हदीस काफर है। और इसमें इतनी तेजी के साथ एक्सेलरेट हो रहा है, इसमें असला आ रहा है, इसमें पैसा आ रहा है, इसमें ताकत आ रही है, पावर आ रही है। पहले मस्जिद जो थी मोहल्ले और शहर और गांव की आबादी जो थी, कम्युनिटी, उसके पाबंद थी। लोग चंदा करके मस्जिद बनाते थे, मौलवी को रखते थे और मौलवी को निकाल देते थे और नया मौलवी रख लेते थे। अब मस्जिद मोहल्ले, बिरादरी, कम्युनिटी गांव से आजाद हो गई है। उसके बाद 5 क्लाशनिकोव है, उसके बाद कहीं से चंदा भी आ रहा है और वो नफरत की आग फैला रहा है। आपने देखा है जाती उमरा जाते हुए 1 सेकंड वो मस्जिद है, एक सड़क के ऊपर चढ़ी हुई है। ऐसा वजीर आला भी अगर उस इंक्रोचमेंट का कोई बंदोबस्त नहीं कर सका तो माशरे का हाल, माशरे की हालत का आप अंदाजा लगा लें कि जो इम्तियाज साहब कह रहे हैं वो 100% दुरुस्त है। करो, सड़क के ऊपर चढ़ी हुई है मस्जिद, उन्होंने सड़क मोड़ दी है, हसन निसार उसकी इंक्रोचमेंट को नहीं। मैंने और हम यहीं पैदा हुए, हमने यहीं मरना है। हमने ना कनाडा जाना है, ना यूरोप जाना है, हमने यहीं मरना है, हमारे बच्चों ने भी मरना है। ये मेरा और आपका धरती है, वतन है। यहाँ पे हम 47 से पहले भी रहते थे और मोहनजोदड़ो के जमाने से रहते हैं। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि ये सिर्फ स्टेट का मामला नहीं है। मैं सिडनी से बहस करके आया हूं अभी 3 दिन पहले कि स्टेट का मामला ना समझो कि पाकिस्तानी स्टेट को चैलेंज कर रहा है दहशतगर्द। सोसाइटी, माशरा, खुद दीन,
सब रूहानी कदरें, स्पिरिचुअल लाइफ तक अब आप दरबार नहीं जा सकते। मैं कह रहा हूं, मैंने उन्हें अच्छा, कहा, मुझे एक बात बताएं, यहाँ वो भी मौलाना साहब पूछते हैं कि ये जो मदरसे हैं इनके फंड्स भी चेक और चैनलाइज नहीं कर सके आप लोग, तो क्यों नहीं? असल में हसन साहब इसमें कोई संजीदा ही नहीं है। मैं आपको बड़ी क्लियर बात ठीक करूं, है, बिल्कुल संजीदा कोई नहीं। अब चाहे वो दौर परवेज मुशर्रफ का हो ना, उस दौर में कोई संजीदा कावश हुई ना इस दौर में कोई संजीदा कावश हो रही है। कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं। नहीं जी, अब बाहर से पैसा आ रहा है, उस पैसे को गवर्नमेंट भी चाहती है हम कोई अपने तरीके से कर लें। कोई मौलाना सूफी साहब, कौंसिल आज के मुझे नाम ये पे बात कर लें। बता दें, ये बाहर कौन सा है जहां ये से बाहर पैसा? अमेरिका आपको मदारस के नाम पे पैसा दे रहा है, बरतानिया दे रहा है, अभी ऑस्ट्रेलिया ने आपको सूफी कौंसिल के नाम पर पैसा दिया है। आप कहते हैं असल में वो तो खाइफ हैं कि यहाँ से चूंकि एक फैसल शहजाद उठता है ऐसी तैसी कर देता है जाके, क्या तो ऐसी यहाँ- तैसी की है, कान से पकड़ के उन्होंने अंदर डाल दिया। ठीक है, गुजारिश ये है कि इवन डिलीवर जो उसने प्लान किया तो कर असल तो साहब सका मैं नहीं। आपको बताऊं कि ये जो पैसा भी अगर चंद मदारस, वो चंद लोग हैं, मैं ये भी आपको कहूं, जो मदरसा है आप चले आज भी देहात के मदरसे में उसकी वो पोजीशन नहीं जो शहर के मदरसे की है, लेकिन अब आपने रसाई इस हद तक दे दी है कि गैर मुमालिक से आने वाली एनजीओ जो है वो जिस मदरसे में जाना चाहें जाती हैं, जिस तरह का सलूक करना चाहें करती हैं, लेकिन किसी मदरसे पे आज तक ये ब्लेम आप साबित नहीं कर सके कि उसने किसी गैर मुल्क से पाकिस्तान में फिरका वारियत फैलाने के लिए पैसा लिया हो। गलत कह रहे हैं। किसी मदरसे पे आज तक नहीं साबित कर सके। इनके सिर पे कुरान रखो, अभी बताओ, इनके सिर पे कुरान रखो, बताएं साबित इनके क्या हो? सिर पे कुरान रखो कि यहाँ पे ये वहाबी, गैर वहाबी, देवबंदी, बरेलवी झगड़े में अरब दुनिया है कि नहीं है? यहाँ अमेरिका शिया नहीं है, सुन्नी, बरेलवी, देवबंदी नहीं झगड़े शिया में, शिया बरतानिया छोड़िए, नहीं है। शिया सुन्नी में है कि नहीं है बताइए। नहीं देखें, हमने एक- देखा दिन ब दिन, हमने देखा। सिर्फ अरब ही नहीं है, मैं तो अरब हैरान नहीं है, सिर्फ मैं तो यहाँ हैरान भी। हो गया, मैं तो हैरान हो गया श्रीलंका में, वहां पे ये फसाद शुरू हो गया जिनका ताल्लुक नहीं है सब कॉन्टिनेंट के फिरका वाला इस्लाम से, श्रीलंका मुसलमानों का। मैं देख के हैरान हो गया। मैं कहना ही चाह रहा हूं, सिर्फ मदरसों की बात भी नहीं है, आपका पब्लिक स्कूल भी गलत हो गया, आपकी यूनिवर्सिटी भी गलत हो गई, आपका दर्स और किताब जो निसाबी वो भी गलत हो गई। अभी लड़के पकड़े गए वो तो मदरसे के नहीं है, ये जो लड़का पकड़ा गया न्यूयॉर्क में वो मदरसे का पढ़ा हुआ नहीं है। बिल्कुल ठीक। ये हाईली क्वालिफाइड, आप जो दिमाग पढ़ा खराब रहे हैं किताब, इनका पंजाब माइंडसेट पता यूनिवर्सिटी नहीं में क्या है। आप जो नसाब पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल ठीक। आप जो जहन बना रहे हैं, और ये ज़ियाउल हक की बदरू जो आज तक पाकिस्तान में छाई हुई है, निसाब में, नजरिए में, किताब में, इदारों में, आप जब कहते हैं कि जनाब जवाहर में, दिखावे मुझे में, बताइए, टोटल दिखावा। मुझे बताइए, अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन फेल हो गया और बिखर गया, अमेरिका और नेटो फेल हो रहे हैं जी। आप कह रहे हैं कि हम उससे जनाब हमारी वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ है, हम ये संभाल लेंगे। अच्छा, ये किस जमाने में फाटा strategic निकल depth गया की आपके बातें हाथ करते हैं से। ये? सुने, फाटा संभल नहीं रहा और पूरे अफगानिस्तान को आप 5 सूबा बनाएंगे और आपने हिंदुस्तान से भी लड़ाई लड़नी है। अगले 20 साल तक अफगानिस्तान सेटल होने नहीं जा रहा। ताज लंगा साहब और ऐसे जो दूसरे कॉम्पर्स कह लें उनको, वो लोग कह रहे हैं, चीख रहे हैं कि जनूबी पंजाब के मदरसे असले से भरे जा रहे हैं और इसका कोई बंदोबस्त नहीं। आज के दौर में जब मीडिया इतना ताकतवर और इतना सोर्सफुल हो चुका है, जब हमारे ही एंकर, मैंने खुद देखा है कि वो उसामा बिन लादन को अफगानिस्तान की गारों में हमें ऑन एयर कर देते हैं, उनका इंटरव्यू ले लेते हैं, तो क्या अगर आज जनूबी पंजाब में अगर किसी किस्म की टेररिज्म की एक्टिविटीज हो रही हैं तो क्या हमारा मीडिया इस काबिल नहीं है कि वो दिखाएं? Fine. मैं आपको चैलेंज करता हूं, कोई इस तरह का एविडेंस दें। नहीं, मैंने फिर देखें गवर्नमेंट ऑफ मुझे पंजाब चैलेंज हरकत में आती है। इसलिए ना करें अमन कि के ये मैं बात आपके मैं नहीं मीडिया कर के रहा, थ्रू- मैं आपके मैं मीडिया के कोट थ्रू- कर रहा हूं ताज लंगा मैं साहब जो को। एजेंसीज हैं उनको मैं कहता हूं कि कोई एविडेंस दें, वो देखें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब हरकत में आशिक आती है। बुजदार भी, ये तो पावर पॉलिटिक्स नहीं कर रहा है, लेकिन चलें आप। मैं इसमें गुजारिश करूंगी, ये बिल्कुल गलत बात है। मैं ये भाई मेरे ने मेरी बात कह दी है। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, डीजी खान से लेकर जरूर डीजी खान में एक ट्रेनिंग कैंप बना था आज से 10-12 साल पहले, 10 साल पहले कह ले, उसको डिमॉलिश कर दिया गया था। हमारे दौर में हुआ था, उसको खत्म कर दिया गया था। मदारिस जरूर वहां मौजूद हैं और ये भी मैं कहता हूं कि ताज लंगा साहब है, ये कोई भी है, आए मेरे साथ, बुजदार साहब भी हैं। कोई साहब भी हैं, वो मैं उनके साथ जाने को तैयार हूं। ठीक है। आप अपना मीडिया साथ ले जाएं, हमें मुंह पे टेप लेके ले जाएं, दरवाजे पे खड़े हों, अगर कहीं से असला बरामद होगा हम उस मदरसे को खुद ताला लगाएं। चलें, एक और बात, ये होगी बात, हो गई। मुझे इनकी बात से मुकम्मल इख्तलाफ है।
ये उस इलाके से हैं, by the ये way। सिर्फ जनूबी पंजाब का मसला नहीं है, लाहौर जिले में नो गो एरियाज हैं। जुर्रत करो वैसे ले जाओ कैमरा। चले कहाँ सेंट्रल पंजाब सुने, मदरसे में जाना है? सुने चले। सुने 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 सिर्फ साउथ पंजाब का मामला नहीं है, सेंट्रल पंजाब के देहातों में बेसिस हैं, सराइकी बेल्ट में देहातों में बेसिस मैंने नहीं खुद है। वैसे कुछ मदरसों की छतों पे मार्शल आर्ट्स की सुने सुने ट्रेनिंग सुने होती सुने देखी है, सुने ये जो है ना, खुद मैंने लाहौर में। नहीं आपने मैं स्कूलों तो में- बड़ी बात कह रहा अच्छा हूँ। एक सेकंड, कराची को सिर्फ सिपाहा साहबा चाहे एमक्यू में उठा के 1 महीने में समुद्र में फेंक सकती है। नहीं इतना तरने वाला नहीं है। ओहो, सिर्फ सिपाही साहबा आपके कहाँ बैठे हैं? सिर्फ लाहौर चलिए, में अल्लाह ना बाहर, करे कभी ये ना लाहौर में सिर्फ एक जिहादी तंजीम लाहौर को टेक ओवर कर सकती है। अल्लाह रहम करे। इस्लामाबाद फिर तो- सुनिए, फिर तो हम छोड़ देते हैं सारे इस्लामाबाद मामला। में भी बाहर से आने की जरूरत नहीं है, बस पेशावर भी टेक ओवर कर सकती है। इम्तियाज साहब जो कह रहे हैं ना, पैसा मौलाना साहब पैसा बहुत है। ऐसा सारा मामला एक नहीं मिनट, मैं है, इसमें इतने चूंकि- हालात नहीं बिगड़े, फिर हजरत तो हमें साहब, सब कुछ। मैं 11 साल की बैठे। उम्र में जिहाद से वाबस्ता हुआ था, माशाअल्लाह। आज तक हूँ। मैं एक बड़ी बात क्लियर करूं कि उन तमाम लोगों को इस मुल्क से जो मोहब्बत रखते हैं, अगर आप दीवार के साथ लगाना चाहते हैं और ऐसी बातें करते हैं, मैं तो इस मुल्क के अंदर बैठा हूं, मैं तो कभी नहीं सोचा, मैं तो अफगानिस्तान जिसकी मुल्ला उमर जिसकी मैं हिमायत करता हूं यहां बैठ के कि उसकी वहां हुकूमत होनी चाहिए, मुझे तो ये पता है कि मुमकिन है कल मैं वहां जाऊं तो मुझे वो वहां रहने भी ना दे। मेरा ये मुल्क है, मेरी ये धरती है, मैंने यहां रहना है, मैंने यहां मरना है। ये सोच नहीं है, चंद लोगों में ये सोच आई है। हमारे आप तो उन्हें अमीरुल मोमिनीन बिल्कुल कहते हैं। कहता हूं जी, मैं वो वैसे फरार यामाहा पे हुए थे कि होंडा पे हुए थे? वो जैसे भी हुए, लेकिन आज तक उसे पकड़ तो नहीं सका। आज उसके तलवे चाट रहा है अमेरिका, आज चाइना उससे बात कर रहा है, आपसे बात नहीं कर रहा। आज इंडिया उससे बात करने के लिए धक्के खा रहा है। आज यूरोपीय यूनियन उससे बात करने के लिए यहाँ के अच्छा, मुल्लाओं की मिन्नतें कर रही गुस्से में आ है। गए। क्यों कर रही है मुल्लाओं में आलम जहाद में नहीं, आना चाहिए गुस्से में। जहाज में आ गए। देखिए, अगर मुल्ला उमर की हुकूमत आई काबुल में, 1 महीने के अंदर पूरी नहीं पख्तून होगा। बेल्ट तालिबान होगी। बिल्कुल नहीं होगा, कुछ अब नहीं कहाँ होगा। बैठे हैं? आपने ईद पे ये मुल्ला उमर का लोग पैगाम ही नहीं ये पढ़ा। लोग मुल्ला उमर ने बड़ा वाज़ेह पैगाम मुल्ला उमर ने दिया ईद के मौके पर कि मेरी पड़ोसियों से कोई लड़ाई नहीं है, हम पड़ोसियों के साथ पुरअमन रहना चाहते हैं। ये हकायक हैं हसन निसार साहब कि जब मुल्ला उमर की हुकूमत थी, 2 कैंप उन लोगों के वहां पर थे जो पाकिस्तान में कार्रवाइयां करते थे आके। मुल्ला अब्दुल रज़ाक वजीर दाखिला जो है उस वक्त के तालिबान गवर्नमेंट के, वो आए, हमने उन्हें शिकायत की। ये उन्होंने मोहल्ला कहा कब से बन गए मुझे सफीर बात उनके बताइए, तालिबान के, इन्हें गिरफ्तार करना चाहिए। पाकिस्तान क्यों मुल्ला उमर एक- की हमायत कर रहे हैं? गिरफ्तार एक करना चाहिए। रियासत- पाकिस्तान बात के है ना। यूएन ने सबसे UN पहले ने बैन किया हुआ पाकिस्तान आलमी कानून सबसे के खिलाफ। उनके साथ हालत जंग में है। ये तो जो लोग पाकिस्तान 5वां कैसी सूबा बात बना कर रहे रहे हैं? थे मुल्ला उमर। एक सेकंड, ये मोहल्ला कैसी आप बात आप कर रहे हैं? अफगानिस्तान को अपना ये 5वां सूबा पाकिस्तान बनाने से बनाने बाज हैं। मुल्ला उमर को वहां रहने दें, यहाँ के मामला तय करें। क्यों आप 5वां सूबा बनाना चाहते हैं अफगानिस्तान को? मुझे एक और बात बताएं आप। कुरान पाक का ये हुक्म है, मैं तो बहुत ही अदना तालिब इल्म हूं, कि मोमिन अपने असर के साथ हम आहंग होता है। मुझे बताएं कि आपके जो निसाब हैं, मैं किसी मखसूस फिरके की बात नहीं कर रहा, सबके, क्या वो कंटेम्प्रेरी हैं? क्या वो इस अहद के तकाजों को पूरा कर रहे हैं? हमारे मदरसे का जो नौजवान है उसकी जहन साजी होनी चाहिए, उसे उस मदरसे के निसाब के साथ साथ उस चांदनी का भी पता चलना चाहिए जिसमें ये दौर गुजर रहा ये है। जो तिफल साजी और जहन साजी वाला काम बंद करे, ये काम ठीक नहीं है भाई, ये काम ठीक नहीं है। ये बच्चों को क्यों, बेचारे मासूम बच्चे, गरीबों के बच्चे, रोटी नहीं मिलती, मदरसे में आ जाते हैं, उनके जहनों में जो जहर भरते हैं। 13 साल का बच्चा सुसाइड बॉम्बर होकर चल पड़ता है। ये कौन सा इस्लाम कौन है करते यार? ये किस इस्लाम की इस पर खिदमत आए। है? ये कौन सी मैं जन्नत आसिफ निसार है? साहब गुजारिश करूंगा। अपने मुसलमान भाइयों आज को मारना, तक ये मैं- खून मार्केट में करना, जीएसटी पे हमला मासूम करना, बच्चे कोई बाबा रोजगार की तलाश दादा में, दरबार में 700 साल घर लगे का कर रहा है, सामान उस पे लेने हमला आया करना, हुआ है। ये जिन कैसी लोगों इलाफत है ने यार? पहले मैं आपके जिन लोगों ने दाता दरबार पर हमला किया वो काबिल माफी लोग नहीं है। तमाम अहले सुन्नत वल जमात उलमाए देवबंद की तंजीमों ने कहा कि इनको पकड़ो, इनको मीनारे पाकिस्तान पर लटकाओ। लेकिन हसन साहब, मैं ये भी माजरत के साथ, आप लिखते हैं मुआशरे का आलम तो ये है कि हम इस कौमी सानहे को भी कौमी सानहा नहीं रख सके। तो इसे हमने बरेलवी सानहा, देवबंदी अब वो नहीं होना सानहा, चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। नून लीग का सानहा, पीपल्स पार्टी, ये कौमी सानहा है। हमें तो मातम करना चाहिए था उस दिन पूरी उम्मत मुस्लिमा को। हज़रत अली अजवेरी ने जिस वक्त यहाँ इस्लाम लाया, यहाँ कोई बरेलवी था?
उस वक्त तो बरेलवियों का या देवबंदियों का दादा परदादा भी पैदा नहीं हुआ था। मुमकिन है उस वक्त देवबंद और बरेली में शायद मौजूद ना मौजूद ना हो, ये हो। शहर बाद में बने हों। और जुल्म की इंतहा ये है जी कि इतना बड़ा सानिया हुआ कि वाकई देखिए, 1000 साल से, और वहां पे भी अफ्रीका वाला क्या कर रहे हैं? वहां पे पॉलिटिक्स हो रही है। वहां पे वो लोग पहुंचे हैं जिनको कभी अल्लाह ने तौफीक नहीं दी कि वो वहां पे कभी मज़ार पे मैंने जाके तो फातिहा कह दे, और बिलाल वहां पे साहब, परवेज मैंने अलाई तो- एंड कंपनी वहां पे पहुंच रही है। बारी बारी ना तीनों दोस्त, मैं इम्तियाज साहब से शुरू करता हूँ। एक लम्हे के लिए हम ये फर्ज कर लेते हैं कि अमेरिकन या नेटो फोर्सेस जो भी हैं सब यहां से पैकअप करके दफा हो गए, मंजरनामा क्या होगा? तहबंदी की जाए, और उसके लिए ये है कि हम भूल जाएं कि अफगानिस्तान को हम संवार सकते हैं या कंट्रोल में रख सकते हैं। अफगान जाने, अफगानिस्तान जाने। ठेकेदारी ना करें ना जी। अच्छा, वो हम जो सबसे- मौलाना ने हम बात की अपना थी कि फाटा, अपना ट्राइबल एरिया, अपना मुल्क सिक्योर उसको करें। 5वां सूबा हम बनाते ये जो बनाते फिर- अपने चारों हम सूबे ये जो आपने फिरका परस्ती की आग है, उजाड़ रहे हैं आप। हम इसकी फिरका परस्ती की आग को खत्म करें। हम ये, मैंने पूछा नौजवानों से पंजाब यूनिवर्सिटी में, तुम पाकिस्तानी हो? उन्होंने कहा हम पाकिस्तानी नहीं है, हम तो मुसलमान हैं। मैंने कहाँ रहते हो? तुम सऊदी शहरी हो, बन सकते हो, तुम गल्फ में कारोबार कर सकते हो। सऊदी देते हैं शहरियत नहीं, आपको? मैंने कहा तुम वेस्ट दे जिस देगा, मुल्क के शहरी हो, अमेरिका दे तालीम देगा, क्या है? यूरोप दे देगा, ओहो, ये कनाडा दे देगा। भाई, ये मैं माशाल्लाह खाता पीता मुसलमान भाई, मुल्क, कभी आप- आपको नजदीक नहीं पड़ा। आपके मैस कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में नौजवानों से पूछा, वह बहस थी पाकिस्तानी शराख्त का बोहरा, वहां को तालिब इल्म अपने आप को पाकिस्तानी कहने की तैयारी नहीं था। भाई आप क्या हो? हम मुस्लिम उम्मा का है। भाई कहाँ है मुस्लिम उम्मा? आप सऊदी अरब के एक गली में इकट्ठे नहीं है। देखिए, आप कहीं पैदा हुए हो, लाहौर में पैदा हुए हो, किसी गांव में पैदा हुए, आप जबान बोलते हो, एक घर में पैदा हुए, एक फैमिली में पैदा हुए हो, एक सूबे में पैदा हुए, एक मुल्क में पैदा हुए, आपका पासपोर्ट है, यहाँ खलल। आप शहरी सियासी सिटीजन हो, शहरी हो, कानूनी लीगल मामला ये है, उसके पासपोर्ट पे हो। किसका फेलियर है? ये हमारे निसाब Who is to be तालीम का, blamed? ये ज़िया-उल हक का, ये जो हमने इस्लाम का नाम, मुकद्दस नाम इस्तेमाल किया, वो बड़ा अगर जहरीला आप टीका नेशन लगा बिल्डिंग है, बात ज़िया-उल करें, हक वाला जो ना अगर आप इंजेक्शन। नेशन बिल्डिंग इस्लाम के नाम पे करेंगे, काश हम कर सकते, मैं तो उसके खिलाफ नहीं हूं, काश हम कर सकते, अब करेंगे तो शिया सुन्नी, अच्छा, मुझे वहाबी बरेलवी, तकफीरी देवबंदी, इस पे बरेलवी आप अहलदीस, ये झगड़ा होगा। करें कि अगर ये सब नहीं, ये शरारत अफवाज, कर जाएगा। गैर मुल्की कुव्वतें जितनी भी हैं अफगानिस्तान में, नेटो और वगैरह वगैरह, ये सारे वहां से वाइंड अप कर जाते हैं, मंजरनामा वही होगा जो इम्तियाज आलम साहब कह रहे हैं। ईरान जो है वो अपना ग्रुप अफगानिस्तान में मजबूत करने की कोशिश में है। बिल्कुल ठीक है। चीन मुल्ला उमर से बात कर रहा है, हिंदुस्तान अपना ग्रुप मजबूत कर रहा है। अगर यही हालात होते हैं और दूसरी तरफ हम भी खड़े हैं कि नहीं जी हमारा भी लाजमी बात है, हमारी सरहद लगती है, हमारा भी मफाद है, तो इन हालात में अगर अफगानिस्तान में पहली बात है अमन होने नहीं लगा है। दूसरी बात पे मैं आता हूं, अगर अफगानिस्तान के अंदर मुल्ला उमर की हुकूमत कायम हो जाती है, क्योंकि उसके अलावा तो वहां कोई हुकूमत बन नहीं सकती है, वहां कायम हो जाती है, मुझे 100% ये यकीन है कि मुल्ला उमर जो है, जो पाकिस्तान को मुकद्दस सरजमीन की तरह समझता है और इन तमाम वाकयात की वो मजम्मत करता है, वो उसने तारीख तालिबान पाकिस्तान को कई खतूत लिखे हैं। इसका मतलब है कि किसी के भी कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। नहीं है, इस वक्त तो कुछ नहीं है। अच्छा आप बताएं कि जो मौलाना ने जो बात की है और इम्तियाज आलम साहब ने, मैं गुजारिश करता हूँ हसन साहब, सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि अमेरिका के जाने से या जितनी हमारी फॉरेन पावर्स हैं, अगर वो यहाँ से निकलती हैं, जो फौरी करने की बात है, हमारे जितने हम तबकात में बढ़ चुके हैं, हमें सबको इकट्ठा करके सबसे हाथ जोड़ के मेहनत समाजत करनी चाहिए। और हसन साहब सबसे बढ़ के ये हमें अपनी सियासतें रियासतें इनसे ऊपर जाके सोचना है कि जो आने वाला जो कल है जो पाकिस्तान का, जिसमें हमारी नई नस्ल जो है वो बेरारवी का शिकार है, वो ये चाहती है कि हमें कोई डायरेक्शन मिले, उनको डायरेक्शन देनी चाहिए और उनको बताना चाहिए। मैं ये जानता हूँ कि जब पाकिस्तान बना था तो मैंने अपने बड़ों से एक नारा सुना था कि जब सब कॉन्टिनेंट जब तकसीम हो रहा था तो उस वक्त पूरे जो हिंदुस्तान के जो मुसलमान थे वो एक नारा लगाते थे कि मुसलमानों की डगमगाती किश्ती का पासबान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। आज मैं समझता हूँ कि आज पाकिस्तान के जो लोग हैं, जो पाकिस्तान के मुसलमान हैं और पाकिस्तान की मिनॉरिटीज़ हैं, वो आज ये नारा लगा रही हैं पाकिस्तान की डगमगाती किश्ती का पासबान कौन है। आज बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। पाकिस्तान की जो किश्ती है वो डगमगा। मौलाना आप एक बात बताएं कि जितने आप वोकल हैं मुल्ला उमर के हवाले से, पाकिस्तान में और कितनी तंजीमें और अफराद ऐसे हैं जो आप जितने वोकल हैं?
देखें जी, मुल्ला उमर से, तालिबान अफगानिस्तान से पाकिस्तान के लोग मोहब्बत करते हैं। ये हाँ, जिन लोगों ने यहाँ दहशतगर्दी की है, हसन निसार साहब, जिन लोगों ने यहाँ दहशतगर्दी की है, किसी की उनके साथ कोई मोहब्बत नहीं है। हम समझते हैं कि दहशतगर्दी खा लाहौर शहर में हो, खा वो ड्रोन हमले के जरिए किसी के घर पे हो, बेगुनाह के, मैं लफ्ज कह रहा हूँ बेगुनाह के, वो एक ही जैसी दहशतगर्दी है। हमें वजीरिस्तान में मरने वाले बच्चे का भी उतना ही गम होना चाहिए जितना हमें लाहौर में मरने वाले बच्चे का गम है। हम उनको क्यों एहसास दिलाना चाहते हैं कबायलियों को कि तुम तन्हा हो, तुम्हारे साथ कोई नहीं है। जिनको कलअदम करार दिया गया जी, जिन जमातों को, जी, उनका क्या और कितना और किस किस्म का ताल्लुक है मुल्ला उमर? बिल्कुल नहीं है जी। मैं ये अभी सिपाह साहबा की बात हो रही थी, मैं आपसे गुजारिश करूं, उनका जो लीडर है मोहम्मद अहमद लुधियानवी, मेरा चैलेंज है पाकिस्तान के तमाम इदारे बशमूल वजीर दाखिला, बशमूल पंजाब के इदारे, साबित कर दे कभी उसने किसी तालिबान लीडर से हाथ भी मिलाया हो। इम्तियाज, आप क्या कहते हैं इस बात में? ये कह रहे हैं कि उनके साथ सिरे से किसी का कोई किसी भी किस्म का ताल्लुक नहीं। मौलाना एक बहुत बड़े सियासतदान है, जीरक सियासतदान है, और फजल रहमान से माशाल्लाह छोटे नहीं है, बड़े पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं। आप साइज की बात कर रहे हैं या सियासी साइज की बात कर रहे हैं? सियासी दिमाग के जो वो वहशत का दौर आया था, वो इस्लाम कहते हैं। ये मानने वाले हैं कुरान के और मोहम्मद के और मेरे दीन के, मेरे नाना के मानने वाले हैं। ये वो दीन है जो ये मुल्ला उमर वहां फरमा रहे थे, और ये सबके कैंप थे वहां पे। पाकिस्तान वो बंदे अपने वहां से ला नहीं सकता था, उनका जाके देख ले, वहां कैंप खाली हो जाता था। ड्यूरल लाइन मानी मुल्ला उमर ने, आखिरी वक्त में कुर्सी लगा के वो बैठ गए थे लोग कि अच्छा भाई दस्तखत कर दो, हुआ नहीं माना। और ये बता रहा हूँ कि हम मरवाना रहे थे, आप कुछ और मरवाना चाहते थे, वो सब बातें। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि हम अफगानिस्तान में दौरे वहशत की वापसी पाकिस्तान बिल्कुल नहीं अफोर्ड कर सकता। इसका मतलब है कि जो गैर मुल्की फोर्सेस का बता दिया ना, वहां नहीं, वहां बता दिया ना, ईरान अपना काम करेगा, हिंदुस्तान अपना काम करेगा, लोकल पाकिस्तान लोकल जत्थे अपना काम करेंगे, अफगानिस्तान तकसीम होगा और अदब इस्तेकाम का जरिया बनेगा, और यहाँ भी उसका असर पड़ेगा। पढ़े लिखे आदमी, इसका मतलब है कि गैर मुल्की फोर्सेस का वहां होना जो है, उसके निजाम क्या है, मुतबादिल निजाम क्या है भाई? मुतबादिल कौन है? आप हैं, हिम्मत है आप में तो संभाल लें, आप कर लेंगे। आप अफगानिस्तान की क्यों इम्तियाज साहब मुझे ये बताएं, पाकिस्तान की क्यों नहीं बात करते हैं? तकफीरियों का क्या ताल्लुक है इस्लाम से? बात सुने, यही हमारी तकफीरी जब अलजायर में खड़े हुए, उनके सामने मुस्लिम स्कॉलर खड़े हुए, उनके सामने अदीब खड़े हुए, उनके सामने सहाफी खड़े हुए। बदकिस्मती क्या है, हमारा बच्चा हनफी उल अकीदा है, वो वहां जाके फैसले तकफीरियों के मुताबिक करवा रहा है। मेरी तो बीमारी ये है हसन साहब, मेरा लोगों को भी समझ आ जाए, तकफीरी को थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। ये टर्म हर किसी को समझ नहीं। मुझे आप सबको काफिर समझते हैं, ठीक, जिनका नजरिया ये है कि मेरी शलवार अगर टखनों से नीचे है तो मैं काफिर हूं, जिन्होंने नमाज पढ़ते हुए लोगों को शहीद किया, किस लिए कि ये रफा यदैन नहीं कर रहे, किस लिए कि ये ऐसा नहीं कर रहे, उन्होंने उन्हें मारा, उन्होंने ये तकफीरी अलजायर से उठे। मुझे आप एक बात बताएं कि मुझे और माइक टाइसन को एक कमरे में बंद कर दिया जाए, ठीक है, किन्हें बंद कर दिया, और कहा जाए कि अब निपट लो आपस में। कितनी आसानी से आप लोग, हम लोग कह देते हैं कि अमेरिका को यूं कर दो, वो कर दो। देखें, बात सुने, परवेज मुशर्रफ गासिब हो, जो मर्जी हो, और हम सब और अक्सरियत मुंह उठा के जब कह देते हैं कि अमेरिका को यूं कर दें, अमेरिका को मुंह कर दें, तो मैं माइक टाइसन का क्या करूं? आप मुझे बताएं। हम ये तो कह सकते हैं ना कि भाई खुद भी जियो, हमें भी जीने दो। आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, मुस्लिम दुनिया बन गई है, ना यूनिवर्सिटी, ना तालीम, ना साइंस, ना इजाद, ना अकल, ना दानिश, ना इल्म हरब, ये जोहला के हाथ पड़ गए। ना साइंस, ना टेक्नोलॉजी, इल्म से दूर। ये गार के जमाने के लोग हैं, दौरे वहशत के, ये इस दुनिया को तबाह करने में चले हैं, ये मरवाएंगे, पूरी मुस्लिम दुनिया को मरवा रहे हैं। इन्हें मुल्ला उमर नसीब हो, उसके गार नसीब हो, उसकी जहालत नसीब हो, पाकिस्तान के बाप गुनाह हम कहते हैं इन्हें नसीब हो। ये जो इतनी अच्छी सी बास्केटें पहन के बैठे हैं, यूरोप के दौरे करते हैं, अल्लाह इनके नसीब में अफगानिस्तान के गार करे। भाई हम भी आपसे जाना चाहते हैं, ओके, दुआ करते हैं अल्लाह ताला मौलवियों के शर से पाकिस्तान को बचाए। नहीं, ये तो इतने स्वीट मौलवी हैं, इनके मौलवी जो है ना, बस अल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज। हम भी चलते हैं, ओके, इजाज़त दीजिए। आवाज तो आनी इसकी। बिलाल साहब, आप तो हाँ, आप बैठे जी। आप तो इतने अरसे के बाद हमारे मोहल्ले में आए हैं। हमने बूढ़ों बुजुर्गों को छुट्टी दे दी है।
अब यंगस्टर्स की महफिल होगी है। आज हमने एक सिंगर को दावत दी है, फलक नाम है, अच्छा, वो वेरी इंटरेस्टिंग नेम। वेरी गुड। हालांकि फलक शेर जनाब ये रास्ता भूल गए थे, मैं अस्सलाम वालेकुम यार, असल में आपका पता पूछ रहे थे। हमारा मोहल्ला ही इतना वो ये फलक के आगे पीछे कुछ नहीं लगता। फलक शब्बीर। हाँ, मैं वही कह रहा था ना कि ये अधूरा अधूरा सा नाम है। इंडस्ट्री में सर फलक के नाम से जरा जाना अच्छा, जाना जाता आपका कोई एल्बम भी आया है? है। जी कोई अभी नया? एल्बम रिसेंटली लॉन्च हुआ है। अच्छा, क्या रिस्पांस रहा उसका? माशाल्लाह बड़ा अच्छा रिस्पांस है अभी तक तो। अभी आपके आने से पहले हम लोग बात कर रहे थे दहशतगर्दी वगैरह पे, जी। तो इसने मेरा ख्याल है आपको भी काफी आपके काम को, डेफिनेटली कॉन्सर्ट्स वगैरह ये वो मुतासर हुए? एग्जैक्टली, बहुत ज़्यादा मुतासर, क्योंकि ऐसे होता है कि महीने में 4 कॉन्सर्ट लाइनअप होते हैं और उसके हफ्ता पहले उसे डिक्लेयर कर दिया जाता है और उसको पोस्टपोन कर दिया तो जाता है, या उसकी एक धमाका आपके पूरे महीने की कमाई ले जाता है। अच्छा, ये मुझे बताएं, आपने बाकायदा सीखा है? क्योंकि मुझे शक्ल सूरत से तो नहीं लगता कि आपका कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं, बिल्कुल मेरा ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपका इंस्ट्रूमेंट्स का बिजनेस भी गॉड है? गिफ्टेड ही है और गिटार शॉप भी है मेरे साथ में, जिसकी वजह से मुझे शायद लगता है कि उसकी वजह से भी। अच्छा, एक नालायक सा आदमी हो अगर मेरे जैसा, जी। तो वो कितनी देर में सीख लेता है गिटार? गिटार बेसिकली पैशन के साथ सीखा जाता है, उसके लिए टाइम की जरूरत नहीं है। मैंने जो जितना भी सीखा है वो किसी से आपका सीखा है। जवाब जो है ना बड़ा यूनिवर्सल है। कोई भी चीज पैशन के साथ सीखी जाती है, लेकिन जनरली एक क्या 6 स्टैंडर्ड मंथ है? आई थिंक। 6 मंथ्स। हाँ जी। आप मुझे ये बताओ कि सबसे मुश्किल इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? वायलिन है, पियानो है, हारमोनियम मुझे है? वायलिन लगता है। उसकी वजह ये कि वो एक तो उसकी टोज होती है, वो बड़ी मुश्किल पकड़ी जाती है, उसकी प्रैक्टिस ही खाली मेरे ख्याल से साल लग जाता है। उसको खाली ऐसे पकड़ना पड़ता है, उसमें हाथ की सपोर्ट नहीं चाहिए। सर जहाँ तक मैंने सुना है इंस्ट्रूमेंट में जो ना वो सारंगी वो बहुत ही मुश्किल है। अच्छा, असल में उसी में से सारा कुछ, सतार भी उसी में से निकली है, और जिसको सतार नहीं बजानी आती वो फिर वो गिटार बजाता रहता है। ये बताएं आपने किससे सीखा है? बाकायदा सीखा है, यूं ही शुरू नहीं, हो मैंने गया? बिल्कुल किसी से नहीं सीखा, और जितना भी मैंने अभी तक अपना एल्बम पूरा बनाया है वो खुद से, मैंने लोगों से बल्कि सीख के, सुन के। तो आपको कोई इसका तो मतलब उस्ताद नहीं? नहीं, मेरा अभी फिलहाल नहीं कोई उस्ताद नहीं, मुझे बताएं, इसका मतलब है आप भी खुदकुश किस्म के सिंगर हैं? आप कह सकते हैं। अच्छा, जो आपका टॉपिक चला उस हिसाब से ये अच्छा, वर्ड ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि आज हमें सुनाएंगे क्या? मेरा भी रिसेंटली आपका सबसे पॉपुलर क्या? मैं चूंकि आउटडेटेड आदमी हूँ, मैं 70s के बाद की फिल्म नहीं देखता, उसके बाद का म्यूजिक नहीं सुनता, तो मैं थोड़ा लेकिन जब मैं चीज़ आउटडेटेड आपको हूँ। सुनाऊंगा आई होप वो सबको पसंद आएगी, हाँ, क्योंकि मुमकिन वो है सुना काफी है, वो एक अच्छा। काफी है और बहुत बड़ा कलाम है और पंजाबी में है, तो मैं चाहूंगा कि किसका है? शायर कौन है? सैफुल मलूक का है। मंदियां चंगियां तेरियां मैं तेरियां, मंदियां चंगियां तेरियां मैं तेरियां, ओ आ ओ बाग बहारा ते गुलजारा बेयारा किस कारी, सजन मिलन दुख जान हजारा, शुक्र करा लखवारी, कौन बंदे नू याद करे सी ढूंढे कौन कबर नू, किस नू दर्द साडा हो सी रोग न मंदी दर नू, मंदियां चंगियां तेरियां तेरियां। वाह, बहुत मजेदार, सिलेक्शन अच्छी है जबरदस्त। जी। हाँ, थैंक यू और कोई उर्दू शुर्दू का कोई? सर। उर्दू भी बिल्कुल है, लेकिन मैं चाहता था कि वो जो आपका सबसे हिट सॉन्ग है क्या? वो मेरा रोग है, जो मेरा डेब्यू सॉन्ग था, हाँ हाँ, और उसी से मुझे जितना भी आज नाम मिला है वो मेरे पहले सॉन्ग से था। वो सुना है? जी जी, ये सर आपके लिए मैं गिफ्ट लाया हूँ अपना एल्बम, बहुत मेहरबानी, थैंक यू वेरी और मच। मैं चाहूँगा कि आप इसे सुनिए। है थोड़ा यूथ बेस्ड म्यूजिक, लेकिन होप कि आपको पसंद आए। मैंने हसन साहब तो मैंने- नसीब यूथ को पसंद करते हैं। आउटडेटेड होना तो मान लिया, लेकिन इतना भी आउटडेटेड नहीं, आप अभी टाइम है सुनने बिल्कुल थोड़ा सा।
ਰੋਗ ਲਾ ਲਿਆਈ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸੋਹਣੀਏ ਬਣ ਬਣ ਡਿੱਗਣ ਮੋਤੀ ਅਥਰੂ ਸੋਹਣੀਏ ਰੋਗ ਲਾ ਲਿਆਈ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸੋਹਣੀਏ ਬਣ ਬਣ ਡਿੱਗਣ ਮੋਤੀ ਅਥਰੂ ਸੋਹਣੀਏ ਯਾਦ ਤੇਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾਗਲ ਹੋਇਆ ਦਿਲ ਕਮਲਾ ਹੈ ਰੋਇਆ ਲੱਖਾਂ ਸੋਚਾਂ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੂਰ ਮੈਂ ਤੂੰ ਹੋ ਕਵੇ ਦਿਲ ਬਾਰ ਬਾਰ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਿਆ ਸਜਣ ਦਿਲ ਦਾ ਤੂੰ ਸੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪਲੋ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੋੜ ਦੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤੇ ਰਲ ਵਾਦੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਤੋੜ ਦੇ ਰੋਗ ਲਾ ਲਿਆਈ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸੋਹਣੀਏ ਬਣ ਬਣ ਡਿੱਗਣ ਮੋਤੀ ਅਥਰੂ ਸੋਹਣੀਏ ਦਿਨ ਬਿਨਾ ਲੰਘਣ ਡੰਗਣ ਮੈਨੂੰ ਕਾੜੀਆਂ ਕਾੜੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ ਉਹ ਸੱਜਣਾ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਵੇ ਦਿਲ ਬਾਰ ਬਾਰ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਿਆ ਸੱਜਣ ਦਿਲ ਦਾ ਤੂੰ ਸੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਯਾਦ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ